So first of all, we'll learn about how to read an environment file, and first of all understand what is an environment file. So see, the way we created some data, okay, data for test data, basically for faker data, as in some data in CSV format or in JSON format, and then we read those data. But these are data which will be utilized in your test cases, and there are few data which you don't want to share across your repository, isn't it? जैसे हम लोग यहाँ पे अभी मैं कुछ भी क्रिएट कर रहा हूँ and I'm posting that on repo. In the same your guys are accessing it, isn't it? But कुछ चीज़ें हैं जैसे यूजर नेम पासवर्ड है वो चीज़ें मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ बाकी सब लोगों के साथ बिकॉज दैट इज समथिंग क्रूशियल. अभी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो जैसे हमारे केस में है इन आई टी वर्टिकल वी हैव अवर ओन माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन सेटअप. ओके, जैसे हम एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं तो वो मेरे ही माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से आईटी के अकाउंट से ही लॉगिन करवाएगा. तो इट्स नॉट लाइक कि मेरा कुछ अलग दूसरा अकाउंट यूजर नेम पासवर्ड होगा. इंस्टेड इट विल बी यूटिलाइजिंग माई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट. सो वो अकाउंट मैं नहीं चाहता किसी और के साथ शेयर करना बिकॉज अगर मैं शेयर इन दैट केस इट विल बी मिसयूज्ड बाय एनीवन. है कोई भी मिसयूज कर सकता है वो अकाउंट डिटेल्स. सो फॉर दोज रीजंस we will be storing those kind of information in a environment related file. So what we have to do, first of all, let's create a new folder over here, and I'll say env folder, environment folder env, and then in this env folder I'll say, let me make it, let's say env only, and then I'll say dot env dot qa environment. तो ये जो इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे एंटर करूँगा दैट इज रिलेटेड टू प्रोबेबली क्यूए एनवायरनमेंट. ऐसे मल्टीपल एनवायरनमेंट्स हो सकते हैं, क्यूए एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और यूएटी एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट. सो एनवायरनमेंट स्पेसिफिक भी आपकी इंफॉर्मेशन या डेटा रह सकता है ना. सो अभी फिलहाल मैंने क्या किया, एक ENV फोल्डर क्रिएट किया और उसमें मैंने .env.qa करके स्टोर किया. ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ेगा. And say for example I'll say URL equals, and यहाँ पे मैं URL दे देता हूँ. I'll copy this URL and paste it over here. Similarly username, so I'll say test underscore username. अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू अंडरस्टैंड कि यूज़र नेम सिर्फ आप लिखोगे तो वो आपका जो सिस्टम में यूज़र नेम होगा वो रीड करके देगा, है ना. तो हमेशा आपको क्या देना है, टेस्ट या फिर वॉट एवर क्यूए विंडोज पे यूज़र नेम या फिर समथिंग, एनीथिंग बिफोर यूज़र नेम. ओके, सो आई एम गिविंग टेस्ट यूज़र नेम एंड वी हैव लाइक दिस पर्टिकुलर यूज़र नेम एंड पासवर्ड कॉमन. So I'll copy that and paste it over here. Perfect. So this is done. Okay, so मेरी environment file create हो गई. मेरी environment file create हो गई. Now see, it is giving me option to line number 9 में fill.process.env something, but I'll come to that point also. So now before utilizing this environment file, we have to install one .env also. So हम क्या करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, कंट्रोल टिल साइन से, we'll go to terminal and over there we'll say npm install .env. okay, something like this. So don't worry, ये सब चीज़ें मैं जब आपको फ्रेमवर्क का डॉक्यूमेंट दूंगा ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी.
So npm install.env, you just have to enter. मेरे में ऑलरेडी शायद इंस्टॉल होगा. Okay, so up to date. Okay, fine. So we have to install.env. This is the one step. You have to create folder env और उसके बाद आपको उसमें like .env, .qa रखना है, .production रखना है, .local रखना है, whatever name you want to give, you can give. And then you have to create some key and value pair. है ना, ये आपका URL is a key and this is a value. अब मुझे ये वैल्यू रीड कर दी. हाउ टू डू दैट? सो यहाँ पे जाएंगे, जैसे test1.spec.ts है, मुझे URL को चेंज करना है. आई वांट टू रीड द URL फ्रॉम हियर and username password again from this particular file, and I want to remove it from here. So before that I have to import .env, है ना, तो I'll say import. It is giving me the option, and then it is again giving me the option of .env config. Okay, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, तो we import .env from .env module, and then config the path I'm giving, saying that okay, this is the env is the folder, and inside that you have .env.qa. सर सॉरी टू इंटरप्ट, जब हम फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं तो अलग अलग जो फेजेस रहते हैं जैसे यूएटी, स्टेजिंग और प्रोडक्शन, उसका तीनों का अलग अलग फ्रेमवर्क बनाने के लिए हम ये सीख रहे हैं सर? नहीं, ये है डिफरेंट एनवायरनमेंट्स होते हैं ना, जैसे प्रोडक्शन क्यूए, यूएटी, अलग अलग एनवायरनमेंट्स होते हैं, और हर एनवायरनमेंट में यूजर नेम पासवर्ड अलग होगा, राइट, यूआरएल भी अलग होगा. यस सर. तो वो इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ स्टोर करूँगा? तो वो इन्फॉर्मेशन मैं .env में स्टोर करूँगा. ओके, एंड से फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे क्यूए एनवायरनमेंट पे रन करनी है, तो मैं यहाँ पे पाथ क्यूए दे रहा हूँ. ये चीज़ मुझे पूरा टेस्ट तो सेम ही रहेगा, एप्लीकेशन तो सेम ही है. मुझे प्रोडक्शन पे रन करना, तो फिर मैं क्यूए के बदले प्रोडक्शन ले लूँगा. तो वो प्रोडक्शन की एनवायरनमेंट फाइल को रीड करेगा और वहाँ से डेटा लेके आएगा. और लिंक और यहाँ पे सिर्फ लिंक बदलना रहेगा तब? सॉरी, लिंक यानी इन द सेंस जो प्रोडक्शन का जो यूआरएल लिंक है और स्टेजिंग का यूआरएल लिंक है, और साथ ही यहाँ पे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है. आप क्या करोगे, एक और क्रिएट कर दोगे ऐसी फाइल, उसमें .env.prod लिख दोगे, और ये तीन चीज उसमें कॉपी पेस्ट करके वो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी. ठीक है सर. तो आपको इस लेवल पे चेंज करना है, आपके कोड लेवल पे चेंज करने की जरूरत नहीं है. सर ये जो फीचर है ये सेलेनियम वेब ड्राइवर में है सर? नहीं, सेलेनियम में एनवायरनमेंट रिलेटेड इस तरह की इंफॉर्मेशन हम इस तरह से भी सेव करते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंट वे. बट दिस इज रिलेटेड टू दिस प्लेराइट विंडो. अभी मैंने डायरेक्टली यहाँ पे प्रोसेस env इस तरह से रीड किया है. आप इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हो. const url equals process as string करने के बदले we can say process string. If I remove this, let me see if it is still. Yes, so probably I have to convert this as string. And then I just have to say URL. Similarly, you can say. Sir, ये string क्यों? Okay, उसको ताकि आप use कर सको. It is reading. Okay, it reads the data as a string because I want to utilize the same as a string format. Because GoTo is taking URL as a string. This time. So then why do we need to write that this like URL is consider it as a string when it is already considering it as a string, sir? Means यहाँ पे string नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं. वो तो TypeScript का फॉर्मेट है. आप नहीं भी दोगे तो वो इन्फ्रेंस तो कर लेगा, टाइप इन्फ्रेंस रहेगा इसका. यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है.
username string और password string because वो ऑलरेडी हमने फिल कर दिया। इस तरह से कर सकते हैं। तो आपने तीनों चीज़ें रीड कर ली, प्रोसेस एनवायरनमेंट यूआरएल, प्रोसेस एनवायरनमेंट टेस्ट यूजरनेम एंड उसको आप यहाँ पे रीड करें। सेलेनियम में हमने प्रॉपर्टीज करके सीखा था, राइट? डॉट प्रॉपर्टी फाइल क्रिएट करते थे और डॉट प्रॉपर्टी फाइल में से हम लोग रीड करते थे सिस्टम डॉट गेट Yes, sir. प्रॉपर्टी। सेम कंसेप्ट आप समझ सकते हो, उसके साथ रिलेट करना तो कर सकते हो, ठीक है? तो नाउ इफ आई रन दिस कोड, so you can see demo blaze schema, username password, web down perfectly, ठीक है? This is how you can store the information in environment file. And now the important thing, okay, कि हमने ये environment में सेव तो कर दिया, but हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि यूजर नेम और पासवर्ड रेपोजिटरी में नहीं जाना चाहिए when we push the code, isn't it? तो हम क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है git ignore। तो डॉट गिट इग्नोर में आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि भाई आपको pnv फाइल जो है वो नहीं भेजनी है, तो इग्नोर दैट। Sorry, sir. ये मतलब ये पेज क्या है? Let me explain a little bit. Just हाँ, ये है आपका कि आप कौन कौन सी चीज़ें इग्नोर करना चाहते हो व्हेन यू आर अपलोडिंग और पुशिंग योर कोड ऑन रेपोजिटरी। जैसे नोड मॉड्यूल्स है, नोड मॉड्यूल्स इज लाइक ये मुझे नहीं चाहिए, नोड मॉड्यूल्स आर लाइब्रेरी फाइल्स रिलेटेड टू प्लेराइट, मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए मेरे CI/CD पाइपलाइन में या फिर रेपोजिटरी में। टेस्ट रिजल्ट्स अगेन आई डोंट वांट दोस थिंग्स, ओके? तो ये कुछ प्लेराइट स्पेसिफिक ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, मैंने प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ये इन्फॉर्मेशन दी थी। आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन रखनी है जैसे पैकेज जेसन, पैकेज लॉग जेसन नहीं आप चाहते कि रेपो में जाए, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, यू कैन मेंशन दैट। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है बिकॉज ये अगर मैं लिखता हूँ दैट मीन्स कि जब मैं यहाँ पे पुश करूँगा तो इग्नोर में से इग्नोर कर देगा, इट विल इग्नोर दिस पर्टिकुलर फाइल टू upload or you can say push to the repository. Clear to this portion what we did? I'll just repeat the things again. So we installed .env, we created a folder env, inside that we created a file .env.qa, उसमें हमने बेसिक इंफॉर्मेशन रखी, URL, test username, test password, okay? And in our test file we said import .env from .env and then .env config. Automatically it will give you the suggestion as well, give the path, if it does not give the path to the आपकी फाइल का जो भी नाम है, and you can store them all the data in specific what to say variables and then try to utilize those variables directly in your code. So that will be much more easier for you guys. Clear? .env question. Now let's understand about MCP. So up till now मैंने आपको Copilot बताया था, right? GitHub Copilot, how to take the advantage of same. Like you have to create a GitHub account and then sign in, right? And you can also install one extension that is GitHub.
already I will be having it. GitHub Copilot chat. ये आप अभी it is there in my VS Code. Okay. Modernization. Okay. Right now it's not needed for my purpose, but अगर आपको ये इंस्टॉल करना है तो ये इंस्टॉल कर सकते हो GitHub Copilot modernization also. You can read through these things and what all it can do. Okay. So GitHub क्या है basically? GitHub Copilot basically it is giving you the option of like interact with this VS Code और it helps you to give suggestion, auto suggestion देता है या फिर आप बोल सकते हो कि आप यहाँ से आपके कोड में कोई भी like changes करवाने हैं तो that you can do with the help of agent. Okay, but now so this is agentic AI which we can say. So there is a concept of MCP server also. Now MCP server are very much specific to application. जैसे MCP playwright के लिए भी है, MCP Selenium के लिए भी मिलेगा, MCP Postman के लिए भी मिलेगा, and हर एक चीज. सर सॉरी टू इंटरप्ट, ये अगेन आप बताओगे कि कहाँ से GitHub Copilot हमें इंस्टॉल करना है सर? हाँ, एक्सटेंशन में जाके आपको GitHub Copilot सर्च करना है and probably this would be already there. इसमें इंस्टॉलेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, so probably it will be there. अगर इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है तो you can install it. And there is one more GitHub Copilot modernization which is again from Microsoft. You can install this. And the important part is कि आपका जो GitHub अकाउंट होगा वो आपको यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा. You'll have to over here I believe यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन आएगा and you have to sign in. Okay, so I'm already signed in with my account. If I want to sign out, I can sign out on that way. Clear, Sunny, this question? How to? So ये GitHub Copilot है और हाँ बोलो, सुनाई दे रहा है? सर सॉरी टू इंटरप्ट अगेन, मैं एक्चुअली म्यूट में रह गया. मैं ये पूछ रही थी कि GitHub Copilot में से कौन सा ऑप्शन हमें मतलब इंस्टॉल करना है सर? आप ये वाला देखो, ये अगर ऑलरेडी है आपके पास GitHub Copilot chat, so this is sufficient. Search ये for ऑलरेडी है सर. हाँ, तो need not to do anything. I believe हमने स्टार्टिंग में ही सेशंस को स्टार्टिंग में मैंने करवा दिया था, so that would be there in your system. Now important part is MCP, so let me try to do a search for MCP server. Right. First of all, let's understand. Okay. Something like this, okay. So अभी अगर आप देखो चैट जीपीटी या कोई भी क्लाउड है, चैट जीपीटी है, कोई भी आपके LLMs हो, LLMs means large language models, जहाँ पे you have all the information stored and when you interact with those things like chat GPT, या आप इंटरेक्शन करते हो, कोई क्वेश्चन पूछते हो, आपको आंसर मिलता है. You can create images also, okay. And पहले क्या था जब AI जब like
इनिशिएट हुआ था लाइक 3 years बैक, 3 or 4 years बैक, कि आप पूछते थे और वो आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी बैक डेटेड देता था। जैसे मैं सेलिनम के रिलेटेड चीज़ें पूछता था तो वो मुझे इन्फॉर्मेशन बैक डेटेड देता था, है ना, समथिंग अराउंड। जैसे अगर मैंने 2024 में कुछ पूछा, इट वुड बी गिविंग मी इंफॉर्मेशन अबाउट 2020, 4 years बैक, क्योंकि वो डेटाबेस तब तक का उसके पास था, इंफॉर्मेशन तब तक थी। बट नाउ इट्स लाइक अप टू डेट, आज की तारीख तक है। जो आज करंट जो है वो भी आप पूछोगे, वो भी इंफॉर्मेशन आपको देगा। अब यहाँ पे आप इंटरेक्शन कर रहे हो विद लाइक चैटिंग, चैटिंग की तरह पूछ रहे हो, वो आंसर दे रहा है, कुछ करके नहीं देगा। जैसे अगर आप, मैं चैट जीपीटी पे लिखूंगा कि ओपन क्रोम ब्राउजर, तो वो क्रोम ब्राउजर ओपन नहीं करेगा। वो आपको बताएगा कि भाई ओके, क्रोम ब्राउजर आपके सी ड्राइव ये फोल्डर में लोकेटेड होगा, या फिर उसका आइकन यहाँ पे होगा, आप उसको डबल क्लिक करो और ओपन करो। तो वो ओपन करके नहीं देगा आपको ब्राउजर, है ना। सेम वे अगर मुझे, जैसे मैं कहूँ कि भाई ब्लेज डेमो या फिर गूगल वेबसाइट ओपन करो और उसमें ये जाके इस बटन पे क्लिक करो, इट वोंट डू दैट, है ना, इट वोंट डू दैट। उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो वो कैपेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? एमसीपी सर्वर। सो एमसीपी सर्वर बेसिकली इज हैविंग और इंटरेक्टिंग विद योर, और वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना है। जैसे डेटाबेस सर्विसेज के लिए भी एमसीपी सर्वर होगा, जैसे मैंने बताया पोस्ट के लिए, यूआई यूएक्स के लिए होगा, कैनवा अगर यूज़ करोगे तो उसका भी होगा। तो उन लोगों ने क्या किया है, वो सारे फंक्शंस जो है, जो प्ले राइट के फंक्शंस है, क्लिक है, टाइप है ना, इंटरेक्शन रिलेटेड, ब्राउजर ओपन करना, वो सारे फंक्शन एमसीपी में हैं। अब हो क्या रहा है, एमसीपी ब्राउजर और चैट जीपीटी या कोई भी एलएलएम के बीच में आ रहा है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है होस्ट विद एमसीपी क्लाइंट, तो क्लाउड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, चैट जीपीटी और व्हाटएवर। दोज इंस्ट्रक्शंस आर गोइंग टू एमसीपी सर्वर with the help of some protocol. Protocol is nothing but set of rules to for communication between those two things. अब वो जो कमांड्स है, जैसे आपने पूछा कि ओपन, आपने लिखा ओपन क्रोम ब्राउजर, तो वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा चैट जीपीटी, तो यहाँ यहाँ जाके आप ओपन कर सकते हो। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? एमसीपी सर्वर, और वो एमसीपी सर्वर फिर आपके ब्राउजर को ओपन करके देगा। ठीक है, इट्स समथिंग लाइक दैट वे। तो लेट मी सी any other image which can directly showcase this method. सो ये मैं आपको दे भी देता हूँ। सो ये अगर आपको रीड करना है तो इसके बारे में रीड कर भी सकते हो। बस so what user is doing, user is giving a prompt, and then whatever AI app or something is there, वो prompt plus function schema it is giving to LLM provider। तो वो कोई भी हो सकता है, चैट जीपीटी हो सकता है, क्लाउड हो सकता है, जो भी आपका कॉन्फ़िगर है। एंड देन वो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन रिटर्न करेगा, वो इन्फॉर्मेशन फिर फंक्शन में स्पेसिफिक टूल पे जाएगी, एंड देन यू विल बी गेटिंग दोस रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट एज context, and then those again things will go to the LLM, and then you'll get answer, and then finally you'll get a response। Okay, say example, show me all files modified today, so API app passes that prompt to LLM provider like ChatGPT, model decides a tool needs to be used and returns a structure function call, app executes the tool and gets a result, the result is fed back to the model। Okay, ये आपको पूरा डायग्राम से भी बताया है, फ्लो चार्ट के हिसाब से बताया है। The one was shown was this one, yeah।
So now this LLM basically gives or passes that whatever response you're getting from LLM, that is passed to the MCP server, and that MCP server basically performs that particular action. Okay, वो कुछ भी हो सकता है, ब्राउजर या ब्राउजर के साथ, ब्राउजर में जो भी वेबसाइट है उसके साथ जो भी इंटरेक्शन है वो आपको एमसीपी सर्वर करके देगा. So this is very much theoretical in nature, but आप ऐसा समझ सकते हो कि MCP is a bridge between you and playwright actions और browsers interactive. Right? आप कुछ लिख रहे हो और आप चाह रहे हो कि वो सिंपल इंग्लिश में लिख रहे हो और वो आप चाह रहे हो कि वो प्लेराइट उसको परफॉर्म करके दे, बट ऐसे नहीं होगा ना. आपको तो इस तरह का कोड लिखना रहता है एंड देन प्लेराइट विल परफॉर्म दैट एक्शन कि आप क्लिक बता रहे हो. इट्स एन एपीआई कॉल विच विल बी परफॉर्म ऑन द ब्राउजर और वेबसाइट. बट ये चीज़ एमसीपी में आपको इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है. आप सिंपल इंग्लिश बेस्ड कमांड्स में लिख सकते हो. राइट, कैसे करना है वो आप समझते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल एमसीपी. तो हम लोग यहाँ पे सिंपली सर्च करते हैं. सर यानी कि एमसीपी सर्वर जो है वो प्लेराइट के थ्रू लाइक सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को एआई टूल्स को एक्सेस करने देता है. हाँ, ऐसे प्लेराइट की जो एक्शंस है वो एमसीपी सर्वर के थ्रू आप यूज कर सकते हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो एमसीपी सर्वर से आप प्लेराइट के एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो विदाउट एक्चुअली राइटिंग दैट इन फॉर्म ऑफ कोड. कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हो. आप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हो. जैसे मैं अभी आपको करके बताऊंगा तो आपको शायद और आइडिया आएगा. देखो यहाँ पे लिखा है द प्लेराइट MCP server is a model context protocol MCP server that gives LLMs the ability to automate and interact with real web browsers instead of relying on raw screenshots or pixel based. ठीक है, this is something different. तो बेसिकली एक ब्रिज है आपके वेब ब्राउजर्स और यूजर के बीच में. आप समझो कि आप कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो सिंपली प्लेन इंग्लिश में और वो परफॉर्म हो रहा है. अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको और क्लैरिटी ज़्यादा आएगी. तो आप सिंपली सर्च करना गूगल पे प्लेराइट MCP सर्वर, और ये जो लिंक है आई शेयर दैट लिंक एज वेल विद यू गाइस. इफ यू गो टू दिस गिटहब पोर्शन, you'll see, if you go down you'll see playwright MCP versus playwright CLI. That's okay. ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है. यहाँ पे आएगा इंस्टॉल सर्वर VS कोड, इंस्टॉल सर्वर VS कोड इनसाइडर. तो हमें VS कोड में करना है. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल सर्वर VS कोड and it will say okay, open Visual Studio Code. So I'll click on open Visual Studio Code. It's already there. Okay, open. Now it will say okay, this is your VS Code, and it is saying okay, playwright MCP server install. Install in workspace or install. I'll say install. It will globally install. Done. Let me see if the extension is coming over there. Install. Yes, it's installed. यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्सटेंशंस के अंदर तो MCP सर्वर इंस्टॉल्स यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ दिखेगा. इट्स इंस्टॉल्ड एंड यहाँ पे अनइंस्टॉल वाला ऑप्शन आ रहा है. ठीक है, आप यहाँ पे सेटिंग्स में भी जाके देख सकते हो स्टार्ट सर्वर, रीस्टार्ट सर्वर, डिसेबल, इंस्टॉल, दीज ऑप्शंस आर आल्सो. सर मैंने किया बट इंस्टॉल नहीं हुआ सर. आप एक बार चेक कर लोगे? ठीक है, शेयर योर स्क्रीन. हो तो गया.
सर वो हो गया, बट लेफ्ट हैंड साइड में नहीं दिख रहा है सर। नहीं, ये अनइंस्टॉल वाला ऑप्शन है ना, आप एक्सटेंशन में जाओ। एक्सटेंशन एज इन, हाँ ये थर्ड लास्ट, हाँ नीचे हाँ सर। नीचे देखो एकदम लास्ट में, लास्ट में। नहीं नहीं, वहाँ नहीं, वो रिकमेंडेड है लास्ट में, दिस वन में। ये ये सर। हाँ राइट, सो दिस इज एमसी, वो आपने बंद कर दिया, दिस इज एमसी, इट्स इंस्टॉल्ड। ये ओके सर। पोर्शन देखो तीन पोर्शन में डिवाइडेड है, इंस्टॉल्ड, रिकमेंडेड और एमसीपी सर्वर। तो सर बट ऊपर जो है आपका दैट इज, आपका नहीं जो मेरा उसमें यहाँ नहीं पे दिखा दिख था, रहा है। नहीं नहीं नहीं, मेरा वहाँ नहीं दिख रहा, मेरा उसमें क्या था, मैं एक्सटेंशन नहीं किया। ओके सर, थैंक यू सर। So if you can see, I am in the extensions portion only, and you have three things: installed, recommended, and MCP. So installed आपका open है, then you can close it, and then you can see MCP. Okay. Now what you have to do, you just have to go to your uh, Copilot section, or you can say chat portion. Okay, chat with the AI. And now I'll say, 7 is here. So I'll say create a test date.spec.ps file. Okay, and automate we have seen about Blaze demo. We will see another example. Okay, so this is a website, blazedemo.com, wherein you can like book flights from one particular city to another destination city. Okay, you can perform like, find flights, choose this flight, and then you can fill up the information, and then you can purchase the flight. So what I'll do, I'll give the information as over here in my VS Code. Create a test.spec file and automate uh, purchase scenario, automate the entire purchase scenario in blazedemo.com, starting from the home page for city between Boston to London. Okay, this way I'm giving the information. And then I'll say enter. So you can say starting MCP servers. Right now it's silence, but let it do that. Close this. So open browser page. I want to allow. It will ask you for your like confirmation. इसमें multiple चीजें हैं. Allow in this session. Or you can say allow once. Allow in this workspace. Always allow. Always allow मतलब आपने पूरा right दे दिया, वो सब कुछ कर सकते हैं. ठीक. तो मैं अभी allow in this session कर दूँगा. So you are giving him the right कि भाई go and do the actions. So right now it's traversing.
उसने प्ले राइट कोड भी लिख दिया, अलाउ इन दिस सेक्शन। और वो प्ले राइट कोड जो जनरेट किया वो रन करके देख रहा है और वो चेक कर रहा है कि भाई इट इज़ वर्किंग फाइन और अगर सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो फिर वो आगे बढ़ेगा। तो आपको लोकेटर्स भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, अभी उसने क्रिएट सी टेस्ट 8 स्पेक फाइल क्रिएट कर दी और वो रन कर रहा है। अब वो पूछ रहा है कि भाई रन करूँ, मैं इसको रन करके देखूँ। will run and will check okay whether it work perfectly fine or not। अगर हो जाएगा तो फिर वो आपको कंफर्मेशन दे देगा कि सब कुछ सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ। I'll keep this as of now। That one failed, so now one failed, it will again go back and it will check for the script and it will update the script। तो हो सकता है जैसे वो लोकेटर आइडेंटिफाई करने में गलती करे या फिर टाइम आउट जल्दी हो जा रहा है, तो दोज काइंड ऑफ थिंग, वो जो भी एरर आएंगे बेस्ड ऑन दैट इट विल कीप ऑन करेक्टिंग जब तक वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। Then it failed। So you can see error context.md file। MD is nothing but stands for markdown file। It's kind of a text file only। तो वो उस MD फाइल को रीड करेगा और अकॉर्डिंगली, so it actually open this time। तो ये पहला उसका हो गया। I'm checking the pages now, replacing 8 lines। Okay, edited। It will take some time, but then the so the important thing is you don't have to do anything. Whatever is done by MCP player, MCP server itself। So it's just how best you can utilize these kind of features। आप कितना अच्छे से उसको यूज कर सकते हो वो इम्पोर्टेंट है।
So it has actually performed all the things, and it opens the home page, selects Boston to London, clicks find flights, choose the first available flight, fills the passenger purchase form, submits the purchase, verifies the confirmation message, and verification evidence. I ran this result, one test and one pass. If you want, I can next add a reusable helper for the booking flow, make the test data driven from a CSV JSON file जो मैंने आपको सिखाया वो करके दे देगा आपको, or convert it into a more maintainable page object style test also. That also it is giving you suggestion कि भाई ये करना है तो करके दे दो. Just you have to give yes or no. है ना? Now let's close this as well, and we'll go to our test. So this is your entire script ready. See, now if I run, let's see if it is performing the actions. Placed in Boston to London, choose the flight, filled up the data, completed. Thank you for your purchase. Here, test is understood, guys. Simple to create these kind of tests. ये जो आप मेहनत करते इतना सारा लिखने में, लोकेटर फाइंड करने में, उसमें हार्डली कितना लिया होगा, 4-5 मिनट और ये क्रिएट कर. ये मैंने उसको एक सिंपल एंड टू एंड फ्लो बताया और उसने क्रिएट कर दिया, एंड इट इज़ अलाउिंग यू टू, है ना. आप इसको जितना प्रॉम्प्ट अच्छे से लिखो वो और अच्छे से करके दे. जैसे हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट फाइल से रीड कर सकते हैं, या फिर ये सारे जो डेटा फिलअप करें वो फेकर लाइब्रेरी से फिलअप करा सकते हैं. दोज काइंड ऑफ यू कैन डू द एनहांसमेंट ऑल्सो यूज कर विद द हेल्प ऑफ एमसीपी. ये जो पार्ट है दैट इज नथिंग बट द बेनिफिट ऑफ AI, द बेनिफिट ऑफ MCP server nowadays. This is very much important to learn and understand. तो आज के टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं है कि ऑटोमेशन डिफिकल्ट है. फ्रेंकली स्पीकिंग थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि भाई पेज क्या होता है, पेज डॉट लोकेटर हम क्या कर रहे हैं, लोकेटर ये CSS है, फिल कर रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन या नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है. इट्स ओके, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. इंशाल्लाह जैसे सेलेनियम में आपको ये सब चीज़ें याद करनी रहती है. I hope this is clear, guys. Understood this part? Yes. So try out this. Okay, MCP portion try करो, install करो, and मैं इसमें एक और आपको अगर सिखाना है तो चीज़ कर सकती हूँ कि क्रिएट सी वो करके देता है spec.ts file and demonstrate the usage of parallel testing using three workers. So let's see if it uses okay, it created a test spec file, and it created parallel 1, parallel 2, parallel 3. Let me log it with workers 3. So this is the command actually to run, or you can set this in your config also. So ये जब तक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करके उसको सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं आ जाता तो तब तक वो रन करता रहेगा, चेंज करता रहेगा, वो इवैल्यूएट करेगा. ओके, so I ran this particular command. You can copy this command and in your terminal you can run the same command as well.
सो व्हाट इज पैरेलल टेस्टिंग? एक्चुअली पैरेलल टेस्टिंग आपने सेलेनियम में भी पढ़ा होगा। पैरेलल मतलब हर टेस्ट इंडिपेंडेंट पैरेलली रन होगा। जब ये जिस टाइम पे रन हो रहा है उसी टाइम पे ये टेस्ट भी रन होगा और ये भी रन होगा। तो वर्कर्स का मतलब है काइंड ऑफ एक एक वर्कर एक एक टेस्ट को अलोकेट हो जाएगा। जैसे 3 टेस्ट है तो 3 डिफरेंट वर्कर्स, मतलब एक वर्कर पे ये काम कर रहा होगा, दूसरा वर्कर ये टेस्ट पे और तीसरा वर्कर। इट्स लाइक काइंड ऑफ थ्रेड इन केस ऑफ आप JBit अगर जानते हो थ्रेड्स कंसेप्ट इन जावा। तो वर्कर्स जैसे आप एक सिंपल टर्म्स में लेमैन में आप एम्प्लॉय समझो कि भाई 3 एम्प्लॉय हैं और 3 काम है। मैं एक एक एम्प्लॉय को एक एक काम असाइन कर देता हूँ। अब समझो मेरे पास 6 काम होते हैं और 3 एम्प्लॉय होते, तो क्या होता? मैं बोलता कि भाई 3 एम्प्लॉयज हैं, ओके, एक हर एक को काम करना है, ये 6 काम है एंड आई विल एलोकेट बस ये स्टार्ट करो काम करना, जिसका जल्दी जैसा कंप्लीट हो दूसरा काम पिक कर लो, है ना। आपके अंदर समझो 3 टेस्टर्स है और बोलो कि ये 6 टेस्ट केसेस है कंप्लीट करने हैं, राइट। टेस्ट केसेस स्टार्ट कर दो एग्जीक्यूट करना, जैसे जिसका टेस्ट केस कंप्लीट हो दूसरा टेस्ट केस पिक करेगा। तो वर्कर क्या करेगा? पर्टिकुलर टेस्ट एग्जीक्यूट करेगा। जैसे वर्कर 1 का काम कंप्लीट हो गया और वर्कर 2 वर्कर 3 बिजी है टेस्ट एग्जीक्यूट करने में, तो वर्कर 1 वो 4th वाला टेस्ट ले लेगा। इट्स लाइक दैट वे, इट वर्क्स दैट वे, ठीक है। ये वर्कर्स आप प्लेराइट कॉन्फ़िग में भी सेट कर सकते हो टीएस में। यहाँ पे आता है वर्कर्स, अभी यहाँ पे 1 है तो 1 वर्कर मतलब एक ही वर्कर है वो काम कर रहा है, तो सिक्वेंशियल वे में वर्क करेगा। फुल्ली पैरेलल ट्रू बाय डिफॉल्ट रहता है ये। प्रोसेस का ये आ रहा है, लेट मी जस्ट अनकमेंट दिस, चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन सेव रहती है, फुल्ली पैरेलल ट्रू एंड वर्कर्स इज 1, ठीक है। अब मैं यहाँ से रन कर रहा हूँ वर्कर्स की। So running 3 tests using 3 workers. Okay. So it actually all the 3 test cases got passed successfully. Probably हमें headed mode भी लिखना चाहिए था। हम लोग लिख देते हैं heading --- headed. Headed means it will open the browser and फिर by default headless रहता है अगर आप headed नहीं लिखोगे। तो headed में comparatively ज़्यादा आपको आइडिया आएगा। देखो ये एक हुआ, दूसरा हुआ और एक और तीसरा आपका यहाँ पे इनिशिएट हो गया है। तो 3 पैरेलली चल रहे हैं, ठीक है, एंड 1 by 1 इट गॉट क्लोज्ड एज वेल एंड 3 गॉट सक्सेसफुल। आई होप दिस इज क्लियर गाइस, अंडरस्टूड पैरेलल टेस्टिंग। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, प्लेराइट कॉन्फ़िग में पैरेलल टू रहता ही है। आपको यहाँ से करना है तो आप यहाँ से भी वर्कर बढ़ा सकते हो, 3 या 4 कर सकते हो, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली यू रन योर टेस्ट, ठीक है। और टर्मिनल से करना है तो आप यहाँ पे आपको वर्कर्स --- वर्कर्स और जो भी नंबर देना है वो देना है। प्रोजेक्ट यानी क्रोमियम, यानी जो प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे मेंशन रहता है, दिस इज अ क्रोमियम प्रोजेक्ट, सो दैट यू आर मेंशनिंग कि क्रोमियम पे रन करना है। एंड --- हेडेड मतलब हेडेड मोड में रन करना है, ओके। तो what I can do, I can give you this command as well, or what you can do, you can try this simple MCP इंस्टॉल करके आप ये करना, फिर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा इसमें।